So hello guys, welcome to EduTap, and guys, as per the feedback that we have received from you, so we have tried to revamp our PIB daily PIB series. Now what we have done try to review here is that PIB जो है वो दोनों ही relevant है both for your phase 1 and phase 2 examination. So now we have tried to cover those MCQs that are relevant in the PIB for your paper of phase 1 and phase 2 examination, जिसमें हम daily 5 topics discuss करेंगे जो कि relevant है only for the phase 1 from the PIB. Then we will discuss some set of 5 MCQs that are based on the topics that are relevant both for your phase 1 and phase 2 examination. ठीक है? And it will be relevant for all the examinations of RBI, SEBI and NABARD. Now without wasting any time guys, let's start with our first set, that is the topics that are relevant for phase 1 only. The first question is about a conference that has taken place. तो आपने यहाँ पे क्या करना है guys? What you have to do is pause here, look at the question, try to solve the question and calculate your marks on daily basis. आपको अपने marks calculate करना है ताकि आप better analyze कर सके at the last moment before your examination. So the conference is on cyber safety and national security. Tell me which organization has launched or hosted this conference. So guys, this conference was hosted by Ministry of Home Affairs. अब इस ऑप्शन को देखोगे तो आप दो जगह पे कंफ्यूज हो सकते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो इसको याद कैसे करना है? इसको याद रखना है बिकॉज गाइस साइबर थ्रेट इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी. और नेशनल सिक्योरिटी कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है? नेशन को सिक्योर कौन करता है? आपका घर को सिक्योर करना है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी द मिनिस्ट्री. तो इसको याद रखना, नेशनल सिक्योरिटी और नेशन को सिक्योर हमारा घर कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द आंसर हियर. सो दिस वाज सीन इन न्यूज़ ऑन 19th of June अबाउट दिस कॉन्फ्रेंस. ठीक है, पर्पस आपको पता है, साइबर क्राइम को उसके बारे में अवेयर करना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव. देन गाइस द सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन संकल्प व सीनी न्यूज. तो आपको मुझे बताना इट इज रिलेटेड टू विच एक्टिविटी. सो नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली क्वेश्चंस जो है अब काफी इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं पीएमए में से भी. तो आपको यू हैव टू नो इन डेप्थ ऑफ द टॉपिक ऑल्सो. जस्ट सिंपली ये नहीं पता कि ऑपरेशन संकल्प इज रिलेटेड टू विच defense exercise, not that, nothing like that. You should remember it is related to which activity. So Operation Sankalp is related to maritime security. If I talk about Operation Sankalp is an initiative of Indian Navy which is providing maritime security in Gulf countries to the Indian vessels because 2019 में there was an attack on the Indian ships. तो उसको protect करने के लिए Operation Sankalp was started by Indian Navy. So 3 years has completed. That is why it was seen in news. ठीक है जी. If I talk about other important operations that we have discussed, one of them was Operation नन्हे फरिश्ते, that is related to आरपीएफ. तो अब हमने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बेसिकली क्या था? चिल्ड्रंस को बचाया था. इट वाज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस. ठीक है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते. सो दैट इज ऑफ आरपीएफ, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस. तो हमने पहले पढ़ा है, तो इसको यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हो, नन्हे फरिश्ते को. ठीक है जी. सो दिस वाज अबाउट द न्यूज़ गाइस. इट वाज अगेन सीन इन 19th of June. तो बाकी सारा मैंने आपको बता ही दिया है. अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट. ठीक है जी, जो कि गल्फ कंट्रीज में आता है. तो आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो किस रीजन में आता है. इट इज रिलेटेड इन द गल्फ रीजन में आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है इट इज सीन. ठीक है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ गाइस, talking about the very important thing, India will be hosting the first ever chess Olympiad. ठीक है, तो बेसिक हमें पता चल गया कि what is serious, but now important is in which city this chess Olympiad will basically will take place. तो chess Olympiad आपके सिटी में होना है. आंसर here is it is Chennai. It is the 44th Olympiad that will be taking place. The two important things when this initiative will take place, जो ये initiative हो रहा है, the one important thing here is guys, the first time a torch bearing ceremony has taken place. तो torch bearing ceremony हुई है for the first time. Earlier it used to take place in Olympics only, but अब एक torch bearing ceremony chess Olympiad में भी हुई है. तो उसका आंसर क्या हुआ कि first country where the chess with the torch ceremony of this chess Olympiad has taken place. तो आंसर क्या हुआ? इंडिया. फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट कर रहा है. कहां पे होगा? चेन्नई में होगा. Then the next important thing here is if I talk about this Olympiad, so 1927 say these Olympiads are basically taking place, and it is after 30 years that this Olympiad has taken place in any Asian country. India में पहली बार, but Asia में after 30 years this
ओलंपियाड इज बेसिकली टेकिंग प्लेस। सो ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ, यू कैन हैव अ लुक आउट और सी अगेन अ वेरी लेटेस्ट न्यूज, 19th of June में इट वाज सीन इन न्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बुक्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। द बुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज अ बुक वाज सीन इन न्यूज दैट इज बाय द नेम ऑफ भारतीय संविधान अनकही कहानी in the PIB. So now you have to tell me who is the author of this prominent book by the name of भारतीय संविधान की अनकही कहानी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो प्रकाश सिंह जी की बुक है, ही इज एन IPS ऑफिसर, हिज बुक वाज रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर इनकी बुक थी, तो मतलब पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो नहीं कर रहा, तो ही इज नॉट बी द आंसर। राशिद किदवानी की बुक वाज ऑन दी leaders, politician and citizens, so he is also not the answer. Roger Fallier's book was on Chinese spies, ठीक है जी। तो ये तीन तो ऑप्शन हमने कैंसिल कर दी। प्रेम रावत इज अबाउट, इफ यू हैव गॉन थ्रू द बुक्स, सो ही हैज रिटन अ बुक बाय द नेम ऑफ हार्ट योरसेल्फ। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज राम बहादुर राय इज द आंसर हियर। सो इफ आई सी व्हाई इट वाज सीन इन न्यूज़, तो राम बहादुर राय जी की बुक है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया और 18th of June। सो रेस्ट बुक्स गाइस मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर ली है। प्रेम रावत की हियर योर, सॉरी नॉट हार्ट, इट इज हियर योरसेल्फ, ठीक है। चाइनीज स्पाइस इज रॉजर फैलियर, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन इज राशिद किदवाई एंड प्रकाश सिंह इज स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। चलिए now guys, static GK plays a very important part in your examination। तो I always tell you कि static GK जो क्वेश्चंस है वो काफी हद तक आपके न्यूज में से, इन न्यूज ही वो चीज होती है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। So on the similar line I have got a static GK question for you। This temple, that is Kalika Mata temple, was seen in news। You have to tell me where this Kalika Mata temple is located। ठीक है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम। So it is located in गुजरात guys and it is located at पावागढ़ हिल्स। तो पावागढ़ हिल्स में लोकेटेड है जी आपका कालिका माता टेम्पल। सो पावागढ़ हिल्स इट इज लोकेटेड, दैट इज इन गुजरात, एंड प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द रीडेवलप्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेम्पल। चलिए, सो वी हैव डिस्कस्ड द 5 क्वेश्चंस दैट आर रेलेवेंट फॉर फेज 1 ओनली। नाउ वी विल बी कवरिंग दोस क्वेश्चंस दैट आर रेलेवेंट बोथ फॉर फेज 1 एंड फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन इज गाइस that is catering to our ESI tag of social sector's education। So recently an award has been given for the education sector। The name of the award is UNESCO's King Hamad bin Isa Al Khalifa। तो King Hamad bin Isa Al Khalifa जो अवार्ड है बेसिकली किंग ऑफ बहरीन के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है, दैट इज रिलेटेड टू SDG 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। दिस अवार्ड इज गिवन बाय यूनेस्को। सो नाउ you have to tell me which institute of India is backed this award। ठीक है, the award is basically being given to Central Institute of Education Technologies for its initiatives on the technology sectors। Along with that, the second recipient of the award was the Digital Education Program of तंजानिया। सो ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको अवार्ड मिला है। 24th of June they will receive this award। The Indian Institute of CIET, that is CIET of NCERT will receive the award। सेकंड कौन सा है, डिजिटल एजुकेशन अवार्ड ऑफ, सॉरी डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ तंजानिया। ठीक है जी। नाउ इफ आई लुक एट दिस थिंग, द थिंग दैट आई एम डिस्कसिंग कि इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एजुकेशन जो कोविड-19 में हुई उसके लिए CITE को अवार्ड मिला है, और डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ तंजानिया and it is implemented by Ubongo, that is the Ubongo Institute in Republic of Tanzania। ठीक है जी। चलिए, तो this was the thing about award I have also discussed with you कि 2005 में अवार्ड हुआ था किंगडम ऑफ बहरीन का जो अवार्ड है, ठीक है, और वो टेक्नोलॉजी में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई है उसके लिए दिस अवार्ड इज बेसिकली बीइंग प्रोवाइडेड। Now when I talk about digital education guys, the SITES program has played a very important role in the scheme, that is PM ई-विद्या स्कीम। सो देयर वाज अ लाइन रिटन इन पीआईबी के पीएम ई-विद्या स्कीम में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था साइट्स ने। सो नाउ व्हिच टेल्स अस दैट पीएम ई-विद्या को भी आपको रिवाइज करना है। सो लेट्स रिवाइज द पीएम ई-विद्या, दैट इज अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक। तो देखो पीआईबी में क्या होता है, अ जेनरिक टर्म माइट बी मेंशन्ड बट दैट कैन बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इफ आई कम हियर,
The question on PME Vidya I'm asking you is कि PME Vidya scheme was launched in which year? Easy question to ask schemes में. Generally इस तरह क्वेश्चन आपको फेस 1 में मिल जाते हैं स्कीम्स के, नाबार्ड में मिल जाते हैं इस तरह क्वेश्चंस, ठीक है जी, कि when it was launched. So it was launched in the year 2020. Now talking about this PME Vidya scheme, हमें पता है ई विद्या का मतलब है क्या है, आपको डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर, you want to promote digital education. If I talk about the ministry, so ministry here is Ministry of Education, ठीक है. Targeted audience is at all level, be it at school level, university level, or at curriculum level. तो हर जगह पे पीएमई विद्या जो है वो हर पब्लिक को, हर लोगों को टारगेट कर रहा है. स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, इट विल बी कैटरिंग. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिजिटल और ऑनलाइन लर्निंग को आप प्रमोट करना चाहते हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ टिपिकल क्वेश्चन फॉर फेज 2 दैट कुड बी आस्क्ड हियर इज, consider the statements which are true about the PME Vidya scheme. So first statement I have given you here is कि video conferencing जो है, video content that is provided under the scheme are provided under the scheduled languages of India. Second statement, the top 200 universities were allowed that they could start their they could automatically start an online course, ठीक है, that was discussed in 2020. Then अमंग द इनिशिएटिव्स, यानी कि दीक्षा इनिशिएटिव्स, काफी इनिशिएटिव्स होते हैं, अगर उसमें से बात की जाए तो शिक्षा वाणी इनिशिएटिव जो है, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड सीबीएसई पॉडकास्ट. सो लुक एट द स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे काफी हमें ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ने, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, whether we have learned about scheduled languages of India. ठीक है जी, क्या हमने scheduled languages के बारे में कोई स्टेटमेंट पढ़ी है पीएमई विद्या में? This is the first part. This is how guys you can solve these questions. It is not always कि आप you know each and everything, but the basic thing when you know you can easily address this question. So scheduled languages of India, whether it was talking about that or not. ठीक है. Second, whether there were top 200 universities, 100 universities or 50 universities. These are the prime things where you should focus. तो यहाँ पे गाइस ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज नॉट टॉप 200, देयर वर टॉप 100 यूनिवर्सिटीज, नॉट शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, द वीडियो कंटेंट इज प्रोवाइडेड इन हिंदी एंड इंग्लिश, एंड शिक्षा वाणी इनिशिएटिव इज राइट हियर. सो इफ आई टॉक अबाउट द डिटेल्ड वर्जन ऑफ पीएमई विद्या स्कीम, तो अगर हम डिस्कस करें तो 25 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को हम टारगेट कर रहे हैं. That thing I have discussed. 12 Vidya E12 Vidya TV channels जो बेस हो रहे हैं वो किस पे हो रहे हैं? That is one class one channel for the classes of classes 1 to 12. ठीक है. टेलीकास्ट करिकुलम भी है हिंदी और इंग्लिश में, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, हिंदी इंग्लिश मीडियम में होगा. और इनिशिएटिव्स, दीक्षा जो था, जो क्या है, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करता है. स्वयं प्रभा इज फॉर क्लासेस, ठीक है जी. एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो इज शिक्षा वाणी, एंड देन देयर इज स्पेशलिस्ट ई कंटेंट, इट इज डेजी, जो कि बजट में भी इसके बारे में बात हुई है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीएमई विद्या स्कीम, बट इफ यू वांट टू गो इन डिटेल ऑफ पीएमई विद्या स्कीम, ठीक है, दीक्षा में हमने सेशन लिया हो, यू कैन लुक एट दैट स्पेसिफिक सेक्शन. ठीक है जी. चलिए, नाउ गाइस, देन देयर वाज अ सेकंड टॉपिक, दैट इज द सेकंड न्यूज़ दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट वाज देयर इन पीआईबी, वाज रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के ऊपर न्यूज़ थी. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू ऑन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2017. तो I think, ठीक है, तो थोड़ी सी टाइपोग्राफिकल एरर है. Consider the statements about Maternity Benefit Act of 2017. What are these three statements? Consider them. The maternity leave available is 26 weeks for the third children also. Then the second statement is talking about the establishment of 25 or more employees. अगर क्रैश फैसिलिटी देनी है तो आपको 25 से ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए. Then there was a thing, the third statement is basically maternity leave of 12 weeks is provided for those who are adopting the child below the age of 3 months. So now guys, this is a statement जो कि हमें maternity benefit act काफी important है आपके social sectors health perspective से. ठीक है. So think here, then look at the question कि इसका आंसर क्या हो सकता है. First let's look at the option. तो ऑप्शन क्या है? only one and two, only two, 1 and 3 and only 3. So now come back to the statement again. तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या हो रही है? इनकरेक्ट. ठीक है. और ये पूछ क्या रहा है? नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू. ठीक है जी. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई. दूसरी 25 नहीं, हमें कितने चाहिए? 50 अप्रैल. व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बिकॉज गाइस मैटरनिटी लीव of 26 week is available for
फर्स्ट 2 चिल्ड्रन एंड फॉर द थर्ड चाइल्ड और बियॉन्ड 2 चिल्ड्रन, तो मैटरनिटी लीव आपको कितने मिलेगी? इट इज ऑफ 12 वीक्स, जो कि पहले मिलती थी। ठीक है जी। सो दिस इज वाई, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई बिकॉज 26 week was right, because 12 weeks to 26 week it was extended, but only for first 2 child, not for third child. That is the important thing जो आपको यहाँ पे हमें इस स्टेटमेंट में ध्यान रखना है। ठीक है जी। एस्टैब्लिशमेंट ठीक है 25 और मोर एम्प्लॉइज से, वो भी 25 तो 50 और मोर एम्प्लॉइज, और थर्ड स्टेटमेंट इज राइट हियर। सो इफ आई टॉक अबाउट हियर, सो गाइस द आंसर इज ओनली 1 and 2. सो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट हियर। ठीक है जी। चलिए गाइस, कमिंग टू द न्यूज, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड द फाइनल रिव्यू कंसल्टेशन ऑफ दिस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज इंपॉर्टेंट। जस्ट एक टर्म आई है, it was just talking about this maternity benefit act, but that is now it is very much important. तो important things जो मैंने आपसे डिस्कस की, 12 to 26 weeks for 2 children, third will then is 12 weeks, maternity leave 12 वीक की मिलेगी अगर आप 3 months से ज्यादा, 3 months से कम बच्चे को अडॉप्ट करते हो, या फिर इफ यू आर अ कमीशनिंग मदर। कमीशनिंग मदर सिंप्लीफाइज हियर इज दोस टाइप ऑफ मदर्स जो कि डिलीवरेबल्स, मतलब जो कि आप कह सकते हैं कि द मदर्स, जिसे आपका यू कैन सर्च हियर इफ अबाउट कमीशनिंग मदर्स। तो कमीशनिंग मदर्स होता है गाइस जो मदर्स जो कि काफी जनरली दूसरे का बेबी कैरी करनी है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टेल। ठीक है, कमीशनिंग मदर आप वहां से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए नाउ गाइस टॉकिंग आल्सो हियर एक इंपॉर्टेंट चीज 50 एम्प्लॉइज वाला मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब हमने एक टर्म डिस्कस किया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। लेट्स डिस्कस अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बिकॉज़ दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो तभी मैंने आपका पॉलिटिक्स, देखिए द न्यूज इज रिलेटेड नॉट ओनली टू सोशल सेक्टर्स हेल्थ बट इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आल्सो, बिकॉज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में 3 स्टेटमेंट्स मैं आपसे पूछ रहा हूं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यू हैव टू टेल मी। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो चेयरमैन होती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। विजन जो है क्या है कि इंडिया में वुमेन को आप सिक्योर बनाना चाहते हो, तो देखिए जो विजन वाली ऑप्शन है वो तो काफी आपको लग रहा है इट इज विल बी राइट। नाउ whether it is a statutory body or a constitutional body, the first point that is you have to look at statutory है या regulatory है। Second, chairman, who is the chairman of National Commission for Women? If you just simply remember the name of that person, ना आप ये statement को easily guess कर सकते हो। ठीक है, स्मृति ईरानी तो नहीं है, तो इसका मतलब second statement तो हमारी क्या होगी? गलत। Second statement becomes wrong। ठीक है जी। So here the option written है correct, हमने पूछा क्या है A, B and C, A and C B और A, B and C B है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, और ये क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, सो दैट इज राइट, व्हिच मींस आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, A and C इज द राइट आंसर हियर। ठीक है जी। कमिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी दैट वाज सेट अप इन Jan 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट ऑफ 1990। विजन बिल्कुल सही है। चेयरमैन कौन होता है? जो कि नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ अ वेरी इजी क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड यू इज यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इजी क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है आपका? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक्स फॉर द पीआईबी ऑफ टुडे। ठीक है जी। If you guys have liked this video, subscribe to our YouTube channel. ठीक है जी। Then guys, to get the access of the PDF, subscribe to the Telegram channel, the link for which is given in the description below. Do let me know about your feedbacks on this thing that we have started, कि whether you have liked these things, ठीक है, कि आप चाहते हो कि इसी तरह से हम कंटिन्यू करें पीआईबी सीरीज। व्हाट आर योर फीडबैक्स? डू शेयर इट विद मी गाइस। ठीक है, वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट आल्सो। ठीक है, क्योंकि इसी सजेशन पे ही, आपके सजेशन पे ही हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट पर्सपेक्टिव आल्सो। ठीक है जी। सो गाइस स्टिल आल्सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, you could drop us an email that is at hello@edutap.co.in. You could even have a call with us, place a call with us, that is at this number 8146207241. So I hope guys the lecture is fruitful for you. You have liked that thing, ठीक है, आपने काफी कुछ सीखा भी होगा, ठीक है, and wishing you all the best for your examination. Bye bye guys.